اسی طریقے سے مسلمان مرد اور ہندو بیوی، اس کے حوالے سے بھی میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی. جو آپ کی تکلیف ہے وہ ظاہر ہے ہم سمجھ سکتے ہیں بہت زیادہ. جس کو بھی خدا کا تعارف ہو گیا اسے پتہ ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر جس کریٹر نے اسے کریٹ کیا ہے وہ اپنی کریشن کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. اور زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر انسان کو اس کے چنگل سے نہیں چھڑا سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ خود فیصلہ نہ فرمائے کسی انسان کے لیے. تو ظاہر ہے کہ یہ آخرت تو بہت سینسٹیو ہے، بلکہ اصل جو ایشو ہے وہ تو ہے ہی آخرت ہے. اصل ہار اور جیت کا دن جو ہے وہ آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے یوم التغابن اسے کہا گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انڈین سکھ بھائی کی دردناک کہانی. علی بھائی بھی رو پڑے. علی بھائی کی بہترین نصیحت اور پاکستان آنے کی دعوت. تو انڈین سکھ بھائی کی جو بات بول رہے ہیں یہ، تو علی مرزا کیا بولنا چاہ رہے ہیں اور کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں سن کے پتہ چلے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں جو مسلم ہیں وہ کہیں بہتر زندگی گزار رہے ہیں اور جگہ سے، کیونکہ انڈیا ایک ایسا ہے، میں بھی انڈیا کا رہنے والا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ یہاں پر مسلم بہت اچھی طریقے سے رہتے ہیں. مسلم ہندو سبھی ذات کے لوگ، سبھی مذہب کے لوگ. لیکن کچھ لوگ ہیں جن کے وجہ سے پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے، تو اس میں سب کو ہم نہیں بول سکتے ہیں. تو اللہ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. علی بھائی ہمارے ساتھ بڑی عارض عزیز علی ڈھلو بھائی ہیں. یہ لائیو ہاں جی، علی ڈھلو بھائی آپ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. السلام ہاں جی، علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈھلو بھائی آپ کے جو وہ یہ کاسٹ ہے نا ڈھلو، وہ میرے جو یونیورسٹی میں، میرے ہر یونیورسٹی میں آپ کے کچھ قریبی دوست ہوتے ہیں، کچھ بڑے لاڈلے جونیئرز ہوتے ہیں. میرا ایک بڑا لاڈلا جو جونیئر، تو وہ اس کا نام تھا زمان ڈھلو. تو وہ اس لیے مجھے تو اپنی ینگ ایج سے پتا ہے کہ ڈھلو ایک کاسٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جی 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 جی. ہاں جی ہاں جی، بتائیں آپ. میں تو آپ کو مطلب آپ سے دیکھ رہا ہوں. میں میرے لیے نا آپ بہت آئیڈیل ہیں. میں مطلب میرے زندگی میں اسلام قبول کرنے کے بعد میں یہ سوچتا ہوں کہ شکر اللہ کا مجھے آپ ملے. اللہ کا شکر ادا کریں جی. اللہ تعالیٰ انسان کے لیے سبب بناتا ہے. جس شخص کے دل میں اخلاص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تمام آزمائشوں سے گزار کے، سارے تردد سے گزار کے سچائی کے راستے تک پہنچا دیتا ہے. بس اللہ کا شکر ادا کریں. اور جب کبھی بھی آپ کا پاکستان آنا ہو، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے کراچی سے شادی کی ہوئی ہے، تو جب آپ پاکستان آئیں، کراچی آئیں تو آئیے گا انشاءاللہ. کوئی ملاقات کا سلسلہ آپ کے ساتھ بنائیں گے انشاءاللہ. میں آپ سے ضرور ملوں گا. انشاءاللہ. جی نہیں، میں آپ کو، میرا تو زندگی میں بہت ایک حسرت ہے کہ میں آؤں گا تو میں آپ سے ملے بنا تو پاکستان چھوڑ نہیں سکتا. انشاءاللہ میں آپ سے ضرور ملوں گا. میرا جو سوال کیا ہے، میرے زندگی کی اس ٹائم بہت، میں جس کشم و کش میں ہوں وہ میری فیملی کو لے کے ہی ہے. جیسے میں آپ کو پتا ہے میرا سارا، میں سوچتا رہتا ہوں میں کیا ایسا کروں کہ یا میرے، کیونکہ میں چیز کو مانتا ہوں، میں اس پہ یقین رکھتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ جس راہ پہ وہ جا رہے ہیں ان کی آخرت بہت مشکل ہونے والی. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا ایسا کروں ان کے لیے. میں ان سے بات بھی کرتا ہوں، میں سمجھاتا بھی ہوں، پر آپ کو پتا وہ جو آپ کہتے ہوتے نا پوتڑے یہاں سے بگڑے ہوئے ہیں. میں کتنا سمجھاوا. میں اس چیز اللہ سے میں تو دعا ان کے لیے ہر نماز کے بعد انہی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ میرے گھر والوں کو کسی طرح ہدایت مل جائے. میں اپنے بہاف پہ میں کیا کر سکتا ہوں سوائے ان کو سمجھانے کے. ہاں جی، میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، کئی سال پہلے مجھ سے ایک بھائی نے سوال کیا تھا، اس کے والدین ہندو تھے. میں نے اس کے اوپر بھی
हिंदू माँ बाप का जनाजा, या इस तरह आप लिखें, यूट्यूब के ऊपर मेरी वीडियो खुल जाएगी। इसी तरीके से मुसलमान मर्द और हिंदू बीवी, इसके हवाले से भी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी। जो आपकी तकलीफ है वो ज़ाहिर है हम समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा। जिसको भी खुदा का तारुफ हो गया, उसे पता है कि उसकी मर्जी के बगैर जिस क्रिएटर ने उसे क्रिएट किया है वो अपनी क्रिएशन के साथ कुछ भी कर सकता है। और ज़मीन और आसमान की सारी मखलूक़ात मिलकर इंसान को उसके चुंगल से नहीं छुड़ा सकती जब तक कि अल्लाह ताला खुद फैसला ना फरमाए किसी इंसान के लिए। तो जाहिर है कि ये आखिरत तो बहुत सेंसिटिव है, बल्कि असल जो इशू है वो तो है ही आखिरत है। असल हार और जीत का दिन जो है वो आखिरत के पॉइंट ऑफ व्यू से यौमुत तगाबुन इसे कहा गया। बाकी आपने जो इस तकलीफ का इजहार किया है वो हम फील कर सकते हैं। आप तो इस हवाले से फील कर रहे हैं, हम तो मुसलमानों के अंदर फील करते हैं। जब मैं भी नया नया रिवर्ट हुआ तो हमें भी अपने माँ बाप भाइयों की बड़ी फिक्र हुई कि वो ऐसे अकीदे के ऊपर हैं कि इसी पर अगर मौत आती है तो आखिरत में सख्त गिरफ्त हो सकती है तौहीद के हवाले से। तो इसके लिए दावत के लिए जो बुनियादी उसूल ये है कि आप लोगों को क्रिएटर का तारुफ करवाएं बजाय इस्लाम का तारुफ करवाने के। देखिए, इस्लाम तो अल्लाह तक पहुंचने का जरिया सिर्फ नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की मंशा के मुताबिक जिंदगी गुजारने का एक जरिया है। इस्लाम के बगैर भी इंसान अल्लाह तक पहुंच सकता है, पैगंबरों के बगैर भी इंसान अल्लाह तक पहुंच सकता है, लेकिन सिर्फ अल्लाह का तारुफ होगा कि इस कायनात को किसी ने बनाया है। उस बनाने वाले की अब मुझसे क्या मर्जी है वो पैगंबरों के बगैर आप नहीं जान सकते। इसलिए पैगंबरों के बगैर जो भी जिंदगी गुजारेगा तो वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक नहीं गुजार सकता। ये बात मैंने इसलिए की है ताकि आपको पता चले कि आपने स्टार्ट कहां से लेना है। स्टार्ट इससे लेना है कि वो भगवान में बिलीव करते हैं, खुदा को मानते हैं, रब को मानते हैं, गॉड को मानते हैं। आपके जो वालिदैन हैं या रिश्तेदार हैं, पहले तो स्टेप मुझे ये बताए ना कि वो मानते हैं कि इस कायनात को किसी ने बनाया। अनम्यूट करें ना अपने उसको, मुझे आपकी आवाज नहीं। माइक अनम्यूट करें और अली ढिल्लो भाई माइक में आपका कंट्रोल करूंगा आप। हाँ जी, तो वो मानते हैं, खुदा में बिलीव करते हैं। जी जी, नहीं वो मानते हैं, वो मानते हैं, शिर्क नहीं वो करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं। अच्छा, हाँ, बस फिर तो आपका मसला 80% तो हल हो चुका है कि खुदा को मानते हैं। दूसरा आप कह रहे हैं वो शिर्क नहीं करते। शिर्क तो होना भी नहीं चाहिए। जो खुदा को जानता है वो शिर्क तो कर नहीं सकता। आज साइंस की बरकत से इंसान की कमजोरियां उस पर हाईलाइट हो गई हैं और क्रिएटर का पावरफुल होना उस पर हाईलाइट हो चुका है कि जमीन और आसमान में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो अपना पेशाब भी रोक सके या उसकी सांस 3 मिनट से ज्यादा रोक दी जाए और वो जिंदा रह सके। इंसान तो इतना मजबूर महज है। अल्लाह ने इंसान के साथ जो कमजोरियां लगा दी हैं, नंबर 1 सांस, नंबर 2 नींद, नंबर 3 खाना पीना, और नंबर 4 उस खाने पीने के बाद उसका इखराज, उसको निकालना। ये 4 कमजोरियां इंसान के साथ ऐसी अटैच हैं कि उसके बाद कोई शख्स भी ये दावा नहीं कर सकता। 5वीं चीज आप ऐड कर लें बुढ़ापा, जो वक्त के साथ साथ इंसान के ऊपर आ जाता है। तो इन सारी कमजोरियों के बाद कोई शख्स शिर्क तो कर नहीं सकता। तो अब अगली बात यह है कि उन्हें कहें कि जब अल्लाह के साथ शिर्क नहीं हो सकता तो दुनिया में कोई एक रिलीजन तो ऐसा है ना जो तौहीद के ऊपर कायम हो, जो ट्रू मानो में गॉड को उस तरीके से मानता हो। तो उन्हें कहे कि आप भी तलाश करें, मैं भी आपके साथ मिलकर तलाश करता हूं। तो सबसे पहले तो आप जिस रिलीजन से आए हैं, सिख, तो वो तो बाबों को पुकारते हैं, बाबू से मांगते हैं, बाबा गुरु नानक के साथ उनके अकीदे वाबस्ता है। उन्हें कहें कि ये कौन सा अकीदा है जिसमें आप बाबों के साथ शिर्क मंसूब किए हुए हैं। हिंदुओं में जाएं वो भी शिर्क करते हैं, क्रिश्चियंस में भी शिर्क मौजूद है। हाँ, ये बात अलग है कि किताबों के अंदर तो हर जगह तौहीद है, लेकिन प्रैक्टिकली इस्लाम को ये एज हासिल है कि सिर्फ इस्लाम ही एक ऐसा रिलीजन है कि जिसमें प्रैक्टिकली मिलियंस ऑफ पीपल इस वक्त भी प्लेनेट अर्थ पे मौजूद हैं जो उस तौहीद को मानते हैं जो तमाम इल्हामी किताबों में मौजूद है। जबकि इसके अगेंस्ट ज्यूज में, क्रिश्चियंस में, हिंदुओं में और सिखों के अंदर किताबों की हद तक तो किसी दर्जे में तौहीद मौजूद है, लेकिन प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट सारे मुशरिक हो चुके हैं। इसका मतलब है कि इन तमाम रिलीजन के ऊपर कोई अल्लाह की गैबी ताईद नहीं उनको हासिल।
इस वक्त ट्रू रिप्रेजेंटेटिव गॉड का, क्रिएटर का इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर मुसलमान है, वो कस्टोडियन है। क्योंकि प्रैक्टिकली दुनिया में मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स बिल्कुल उस तरह की 24 कैरेट तौहीद रखते हैं जो अंबिया लेकर आए थे, जो हिंदुओं की किताबों में लिखी हुई है, जो क्रिश्चियंस की किताबों में लिखी हुई है, ओल्ड टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में, जो सिखों की किताबों में तौहीद लिखी हुई है, जो पारसियों की किताबों में तौहीद लिखी हुई है कि गॉड अपने साथ किसी को शरीक नहीं करने देता, ना किसी पैगंबर को, ना किसी फरिश्ते को, ना किसी जिन को। तो प्रैक्टिकली मुसलमानों में मुवाहिदीन का होना इस बात का सबूत है कि अल्लाह ताला की गैबी ताईद इस रिलीजन के साथ है। आपको समझ आई बात की? जी जी। और हाँ, जिसके साथ अब अल्लाह की गैबी ताईद, तो अपना टाइम लेना, उनको कि अपना टाइम ले, उस रिलीजन को तलाश करें। दुनिया में इंसान इसलिए तो नहीं आया कि खाए पिए और उसकी नस्ल हो और वो दुनिया से चला जाए। तो जानवर भी काम कर रहे हैं। इंसान एक सीरियस क्रिएशन है, अल्लाह की पर्पसफुल क्रिएशन है। तो बस एक जुमला मेरे याद रखिएगा कि जिस अल्लाह ने, जिस गॉड ने, जिस खुदा ने, जिस भगवान ने, जिस सुप्रीम बीइंग ने, जिस सुपरनेचुरल एजेंसी ने हमारी मर्जी के बगैर हमें पैदा किया है, हमारी मर्जी के बगैर, हमसे पूछे बगैर हमें इस प्लेनेट अर्थ पे भेज दिया है, वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। हमारे पास कोई जाए बना नहीं सिवाय इसके कि हम उसकी बात मानकर जिंदगी गुजारें और उसके पैगंबरों की मान के जिंदगी गुजारें, क्योंकि हमारे पास जाए बना नहीं है। इस दुनिया में भी उसने जो कुछ जिसके साथ करना है वो कर देता है। बड़े से बड़ा सेहतमंद बंदा उसकी सेहत छीन लेता है। बड़े फिट लोगों को मौत, कोई दुनिया में ऐसा बंदा है जो मौत से अपने आप को आजाद करवा सके। अगर हमने मरना ना होता तो फिर हम अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकते थे। हमारा सबसे बड़ा मसला है कि हमने मर जाना है। अगर मरना ना होता तो फिर हम अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकते थे, हमें तो कोई फिक्र ही नहीं थी। खैर, ये तो एक फैक्टर है। मरने के साथ ये जो जिंदगी है इसके अंदर भी कई कमजोरियां हमारे साथ, सेहत की कमजोरी, बुढ़ापा, ये तमाम चीजें, खाने पीने की कमजोरी, सांस की कमजोरी, नींद की कमजोरी। 24 घंटे में हम एक दफा अगर सोए ना तो अगले 24 घंटे हम परफॉर्म नहीं कर सकते। ये सारी जो कमजोरियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और सबसे बड़ी कि हमने मर जाना है। अपने बस माँ बाप, रिश्तेदारों को ये बताएं कि अगर हमने मरना ना होता तो जो मर्जी कर लेते। अब चूंकि हमने मर जाना है तो जिसने हमें हमारी मर्जी के बगैर भेज दिया दुनिया में पैदा करके, तो अब मरने के बाद भी फिर वो अपनी मर्जी हमारे साथ करेगा। और अब जो लोग ये कह रहे हैं कि मरने के बाद उसने ये आपके साथ कर देना है, तो उनकी बात मान लो ना, मरने से पहले तैयारी कर लो उसकी। बिल्कुल ठीक हो। बाकी इंशाल्लाह जब पाकिस्तान आएंगे तो गपशप होगी। ठीक है ढिल्लू भाई जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, भी माने। यानी कि जी 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 करे कर। जी जी। अच्छा जी, एक सवाल ये था कि मतलब जो फैमिली मेंबर्स जैसे कुछ होते हैं, जो आपके माँ बाप कह लें या भाई बहन जो हैं, मतलब वो अगर आपकी लाइफ पे बहुत गलत इम्पैक्ट उनका पड़ रहा है, आपके बच्चों पे भी पड़ रहा है, आपके घर के माहौल पे पड़ रहा है, तो मतलब कितना हद तक उसको बर्दाश्त करना जरूरी है? मतलब मैं नहीं कहता कि मैं रिश्ते खत्म करना चाहता हूँ, पर मतलब मैं कितने हद तक उस चीज को। जी जी जी, मैं आपको बता, फौरन इलायदगी इख्तियार करें, फौरन से पहले इलायदगी इख्तियार करें। उनके साथ हुस्ने सलूक आपने नहीं छोड़ना। आपने अपने माँ बाप, बहन भाइयों के साथ हुस्ने सलूक करना है। वो कुरान में हुक्म है कि माँ बाप अगर शिर्क भी करते हो दुनिया में मारूफ तरीके के उनके साथ चलना है। लेकिन जो आपकी अपनी जो फैमिली जो इस्लाम कबूल कर चुकी है, उनको फौरन उनसे अलग करें। ठीक है, कभी कभार मिलना मिलाना रखें, लेकिन टोटली उनके अंडर ना रखें, ताकि कोई नेगेटिव चीज ना उनके अंदर इमर्ज हो। हाँ, जब बच्चे समझ बूझ वाले हो जाएंगे फिर इंटरेक्शन ज्यादा करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फिल वक्त आपको अलग होने में ही आपकी आफियत है। ये मेरा मशवरा है। लेकिन अलग होने का ये मतलब नहीं कि माँ बाप को आपने रुलने के लिए छोड़ देना है ना। इदा नहीं करना कि माँ बाप ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਉਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੌਹੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਉਸਨੇ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਉਸਨੇ ਸਲੂਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ बीवी ने नहीं करना, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ नहीं करना, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ऑब्लिगेटरी है, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ठीक है जी, शुक्रिया अली ढिल्लो भाई, आपने मैं ज्वाइन किया। मैं मतलब अपने इन-लॉज ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, मतलब ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ इन-लॉज ਆ, मतलब ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ मतलब ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ- ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲਈ ਮਤਲਬ ਖੜੀ ਰਵੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਸ਼ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਤੇ ਕਰੇ ਨਾ ਖਿਦਮਤ, ਜਿਤਨੀ ਕੋ ਗਿਵਨ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ चले ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਲੇ ਇਤਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਵਰਨਾ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਲਾਦ ਦੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਰਾਦਾ ਕਿਤੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤਾਂ ਬਣ ਕੇ ਟਾਈਮ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਤੌਹੀਦ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 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 ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ठीक है जी, फी मान अल्लाह। ठीक है, फी मान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नेक्स्ट